اسلام آباد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، خوفناک دھماکے میں 32 افراد شہید، 162 زخمی ہوئے۔ دھماکہ ترلائی میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ہوا۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے سے روکنے پر دھماکہ کر دیا۔ دھماکہ دوپہر کے وقت 1:38 پر ہوا۔ دھماکے کے بعد وفاقی دارالحکومت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پمز اور پولی کلینک لائے گئے 29 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ خودکش حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہو گئی۔ خودکش حملہ آور کے 2 بھائیوں سمیت 4 افراد زیر حراست۔ سہولت کاروں اور معاونین کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترلائی کلاں امام بارگاہ میں حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد خوف اور تفرقہ پھیلانا ہے۔ پاکستان کا جواب اتحاد اور ریاستی عملداری ہے۔ امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس ظلم کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی۔ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی میں ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ خودکش حملے میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شہید ہو گئے۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کی پراکسیز کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خودکش دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت، کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر دہشت گرد جہاں بھی ہو واصل جہنم کیا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی بھی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ گورنر خیبر پختونخوا سمیت 4 گورنرز کی بھی دھماکے کی شدید مذمت، کہا کہ عبادت گاہ پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے رہیں گے۔ دنیا بھر سے اسلام آباد میں المناک خودکش دھماکے پر مذمتی بیانات۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ دہشت گرد حملہ انسانیت کے خلاف گھناؤنا جرم ہے۔ پاکستانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکہ، چین، روس، فرانس، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، نیدرلینڈ سمیت یورپی یونین کے مختلف ممالک نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مجلس وحدت المسلمین کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ کا میوزیکل کنسرٹ منسوخ کر دیا۔ دولت مشترکہ پارلیمنٹیرینز ایسوسی ایشن کی تقریب سادہ انداز میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کی تمام تقریبات منسوخ کر دیں۔ لبرٹی چوک پر بسنت میگا شو بھی منسوخ، کہا کہ دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا اسلام آباد دھماکے پر پاکستانی قیادت سے اظہار تعزیت۔ پیوٹن نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خطوط بھیجے۔ خط میں لکھا کہ اسلام آباد میں دہشت گردانہ حملہ المناک ہے۔ مذہبی تقریب میں لوگوں کا قتل بربریت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔ دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری کا تعزیتی خط پر روسی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ پی ٹی آئی وفد نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو تحریری درخواست پیش کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یادداشت پیش کی۔ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے فیملی ڈاکٹر کی ملاقات کروائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ سنجیدہ ہے۔ پہلے بولا علاج نہیں ہوا، پھر تسلیم کر لیا، مگر دستاویز نہیں دی۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی قیدی ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला और अगजई में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जुराइम पेशा नासर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। अमेरिका का बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर ने एक्स पैगाम में कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी ना, सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़िरा पर तहलका खेज प्रोग्राम, तज़्किये बेलौर, कई राज के पर्दे चाक किए। 92 न्यूज़ ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। सच्चाई की राह और सहाफती उसूलों पर कारबन 92 न्यूज़ आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियां। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने 11 साल में जो मुकाम हासिल किया वह काबिल कदर है। 92 न्यूज़ दीन की जो खिदमत कर रहा है वो इसे बाकी चैनल से मुमताज़ बनाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में सालगिरह तकरीब में शिरकत। कहा 92 न्यूज़ ने कम वक्त में नुमाया मुकाम हासिल किया। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियों में शरीक हुई। अज़मा बुखारी की जानिब से 92 न्यूज़ की इंतज़ामिया और टीम को मुबारकबाद। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी बने। कहा कि दुनिया भर में नाजरीन 92 न्यूज़ की खबर पर एतमाद करते हैं। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह का केक काटा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कि 92 न्यूज़ का शुमार मुल्क के मोतबर तरीन इदारों में होता है। हैदराबाद, बदीन, लाड़काना और मीरपुर खास में भी सालगिरह का केक काटा गया। सखर में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने केक काटा और कहा कि 92 न्यूज़ ने हमेशा मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार रखी। बेबाक सहाफत के 11 साल। 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। सरगोदा, झंग, चिन्योट, लैया, मरी, चकवाल में केक काटे गए। मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में भी केक काटने की तकरीबात। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में केक काटे गए। अवाम का मसाइल उजागर करने और आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने पर 92 न्यूज़ ने इजहार तशक्कुर। सबात, बुनेर, नौशहरा, टांग और चकदरह में केक काटे गए। गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला में केक काटने की तकरीबात। शुरका की 92 न्यूज़ की मज़ीद कामयाबियों और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। चैनल की सहाफ़ती खिदमात को सराहा गया। 92 न्यूज़ मीडिया के उफक पर अनोखी सज धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल सिर्फ 92 न्यूज़ का तुर्रा इम्तियाज।
HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और खबर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो से नशरियात, कोहसारों के नज़ारे हों या सहराओं के मनाजिर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हज़ारों मील की दूरियां मिटा दी। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा 11वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हर कोई 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार का मुतरफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद के ख़ुसूसी पैगामात। सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा, मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। शहबाज शरीफ की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स भी 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। वफाकी वज़रा और इंतज़ामी अहदेदारों के भी तहनीती पैगामात। तरक्की के मनाज़िल तय करते रहने की दुआएं। खबरों के साथ 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स भी यकसा मकबूल। दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकबा फ़िक्र के उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवाज भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसालात। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की दुहाई हो या दहशतगर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का खासा है। बेहतरीन एंकर्स और जहांदीदा तज्ज़ियाकारों के मुस्तक़बिल की हकीकी पेशबंदी, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स का वाहिद मकसद है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होते ही छा गई। जानदार और बेलाग तबसरे और तज्ज़िये अवाम को भाए। साबिक़ क्रिकेटर मोहसिन हसन खान बोले, खेल में सियासत भारत लाया। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल दिखाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत से ना खेलने का फैसला बाइसे मुसर्रत है। साबिक़ क्रिकेटर PJ मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना भारतीयों के लिए बड़ा धचका है। नासिर हुसैन ने ठीक कहा कि भारत क्रिकेट को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान की यकजहती से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। और ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को अच्छी शुरुआत करार दिया। कहा, फ़रीक़ैन ने ख़यालात और तहफ़्फ़ुज़ात का तबादला किया। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। उधर अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की नक़्ल व हमल में शामिल 15 इदारों और 14 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत।